Okay, so recording has started. So welcome for Google Tools training with GG Ahmedabad, and today's session is learn more about Google Docs. That is basics and advanced of Google Docs. And today's mentors are Dipti Vyas and Payal Rachadia. They both are Google certified educators, level 1, level 2, and they're going to teach us how to use Google Docs in classroom. So over to you, Payal ma'am, Dipti ma'am, and I'll be at the background. Acha, we have teachers joining us from out of Gujarat as well as out of country as well. So I would suggest कि हिंदी इंग्लिश गुजराती मिक्स करके आपको आज का सेशन लेना है. Okay, sir, Yes, sir. definitely. Definitely, sir. हो जाएगा. Okay, चलो let us start for today's session. Welcome, Okay. Mukta ma'am. Good evening, everyone. Good evening, Mukta Vishal ma'am. sir. Good evening, Mukta ma'am. Glad to see you here. Thank you. Okay, so shall we start Dipti teacher session? Yes, ma'am. Yes. Go ahead, ma'am. Okay. So this is me, Dipti Vyas, science teacher. Before that, curious learner. Now I am co-leader of GG Ahmedabad. Always having positive attitude. Love to read. વાંચવું ગમે છે અને વર્લ્ડ સાથે કનેક્ટ થવા માટે ટેકનોલોજીનો યુઝ કરવો ગમે છે અને આઈ એમ ગૂગલ certified educator level 1 and level 2. Over to you, Payal ma'am. Yeah, I'm with the Dipti teacher and I am Payal Rachadia, 30 years of educational experience, co-leader of GG Ahmedabad, always eager to learn new technologies, using technology in everyday work. And I'm also Google certified educator level 1 as well as level 2. So before start this session, I just want to warm up you or energize you all. So can you please, Deputy teacher, start our activity? યસ પણ તમારે સ્ટાર્ટ કરવી પડશે. યસ, Yes, I વાર્મ અપ can. એક્ટિવિટી છે અને તમારે પ્લાન્ટ્સના પાર્ટને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. તમને એક બ્લેન્ક આપી હશે એ. સો ફર્સ્ટ કાર્ડ, the small plant is called dash. નાનકડા વૃક્ષને ખાલી જગ્યા કહેવાય છે. છોડ કે क्षुप. सबसे छोटा प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, सबसे छोटा प्लांट को क्या बोलते हैं? Whether it is a shrub or whether it is a herb. Answer, type answer in chat. So you can answer by typing your answer in the chat box, or you can speak it out. Doesn't matter. Okay, Whatever you feel fastest finger first. बोली जाओ, बोल दो. No. Okay, Correct fine. answer is herb. Herb सबसे छोटा होता है. Okay, shrub उससे बड़ा होता है. I mean shrub उससे बड़ा होता है. Second, the dash on the plant helps make seed and fruit. कौन सा वो जो पार्ट होता है प्लांट का जिससे सीड बनता है और उसमें से फ्रूट बनता है? लीव्स, फ्लावर, वाटर और सन? Flower. Shalini ma'am gives correct answer. Correct, flower is correct. Very good. सभी genius है. Which part of a plant helps keeps the plant in upright position? कौन सा ऐसा प्लांट का प्लांट है जो upright position में हेल्प करता है प्लांट को? स्ट्रेट रखता है, प्लांट को स्ट्रेट रखता है. करेक्ट शालिनी मैम. करेक्ट रश्मि बहन. करेक्ट. Yes, it's a stem. It is stem. Correct. It is stem. ગુજરાતીમાં પ્રકાંડ કહેવાય. A tomato is a branch of a plant. Okay. Stem, leaf, fruit और root. टोमेटो को क्या बोलेंगे हम प्लांट का? Fruit. Correct. Very good. Yes. Very good. मुझे लग रहा है कि सभी यहाँ पे साइंस टीचर है. जीनियस है, जीनियस. A tall plant is called dash. ये तो सबसे आसान है. सबसे लंबे प्लांट को क्या बोलते हैं? Yes, exactly. Tree is the right Very answer. good, पन्ना मैम. Tree. Next. The dash bring water of the rest of the plant. Leaves, fruit, stem or flower? Stem. कौन सा? Stem. Correct. Stem. शाबाश. Very good. Very good. The use of the sun and air to make food for the plant.
कौन फूड बनाता है? फ्लावर, लीव्स, स्टेम और रूट? लीव्स, करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड. टू ग्रो अ प्लांट नीड डैश एंड डैश. वनस्पति ने प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सन, वाटर, Sun or water. Sun or water. Genius. Spinach is a plant. Dash is a dash of a plant. Leaf. Very good. Very good. Very good. Sabash. Last one. This is repeating. Okay. This is repeating. Yes. Okay. So here Okay. we. Yes. So मजा આવી? I mean, did you enjoy? Yeah, it's a very good warm up exercise. બહુ મજા આવી. Yes. બધા સાથે જોડાઈ ગયા. Very good. Good. Okay, so shall we start our session? Our session is regarding the Google Doc. Google Doc એક ઓનલાઈન વર્ડ પ્રોસેસર છે જે તમને ડોક બનાવવા અને એને ફોર્મેટ કરવા માટે या तो अन्य लोगों સાથે કોલેબોરેટ કરવા માટે ઉપયોગી છે. हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि गूगल डॉक से हम किसी भी जगह कोई भी ऑफिस रिलेटेड फाइल्स को यूज कर सकते हैं. दैट इज वेरी फ्री. सो गूगल डॉक से हम लेटर्स, ब्राउजर्स, पोस्टर, कवर पेज, बर्थडे कार्ड्स, देन रेज्यूम, ऐसी सारी चीजें या तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इजीली बना सकते हैं. It's not we not need to download a software or do some payments. हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. नो स्पेसिफिक ब्राउजर और कंप्यूटर नेसेसरी. हम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, टैबलेट में भी कर सकते हैं. हमें स्पेशल लैपटॉप या कंप्यूटर की गूगल डॉक यूज करने में जरूरत नहीं पड़ेगी. इज देयर इज रियली एनी प्रोडक्ट आउट देयर दिस डेज दैट इज सिंपल एंड ऑप्शन? देन आंसर इज अ गूगल डॉक. वो बहुत ही इजी है. हम लोग आई थिंक जो ऑफिस से थोड़े से भी रिलेटेड है, परिचित है, तो उसके लिए गूगल डॉक बहुत ही इजी रहेगा. और इसमें जो बेस्ट बेनिफिट है दैट इज कम फ्रॉम द गूगल्स. मतलब कि गूगल के सारे टूल्स के साथ वो इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम गूगल की सारे टूल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसको भी हम किसी और जगह पे भी यूज कर सकते हैं. गूगल डॉक इज अ कंप्लीटली फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म. जनरली वो सिंक्रोनाइज है फोन के साथ, टैबलेट के साथ, डेस्कटॉप के साथ. मतलब कि सपोज आपने कुछ वर्क किया है अपने लैपटॉप में, देन आफ्टर यू जस्ट वेंट स्कूल या बिजनेस एरिया ऑफिसेस, और आपको फिर कुछ वापस याद आया कि ये तो मुझे रह गया है, और आप वहां पे जाके अपने मोबाइल से उसको वही डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल इन अ गूगल डॉक. वो सारी जगह सिंक्रोनाइज कर देगा. जो भी एडिटेड डेटा है, जो भी एडिटेड थिंग्स है, वो सब जगह लिंक की हुई होती है, तो हम लोग इजीली उसको देख सकते हैं. दैट इज द बेस्ट थिंग of Google Doc. And we can also work online as well as offline. हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं Google Doc के साथ, हम ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं Google Doc के साथ. All you need is a Google account, the same free account that you use for the G Suite or Gmail. हम लोग सब लोग Gmail यूज करते हैं, तो हमें बस Google Doc यूज करने के लिए एक ही चीज चाहिए, that is our Google account. हमें Google account ही चाहिए. एंड अगेन हमने जो कल बात की थी, ये क्लाउड बेस्ड है, तो हमारा सारा डेटा है वो हमारे लैपटॉप या मोबाइल की मेमोरी में स्टोर नहीं होगा. सारा डेटा, फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह सब कुछ क्लाउड में स्टोर होगा, इंटरनेट पे स्टोर होगा. The platform even automatically synchronize and save all your work, so you don't even have to worry about pressing a save. Yeah, this is a best thing. आपको यहाँ पे कुछ भी करके सेव बटन पर क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जनरली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, तो हमें एक चिंता रहती है कि अगर हमने कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया है या तो सेव बटन पर प्रेस नहीं किया है, तो हमारा सारा डेटा चला जाएगा. बट यहाँ पे हमें सेव बटन की जरूरत ही नहीं पड़ती,
क्योंकि गूगल डॉक और गूगल के जितने भी टूल्स हम यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है, तो हमें यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग ऑन अ गूगल टूल। नाउ इन अ गूगल डॉक हम बहुत सारे फीचर्स है जो हम सीख सकते हैं। दैट इज इंसर्टिंग द इमेज, टेबल, ड्राइंग, चार्ट, फुटनोट, डेट, header and footer, and page number. Same way format, we can format the text, we can create the bullets, we can create the table of content, we can do the voice typing. हम लोग डॉक्यूमेंट को कंपेयर भी कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि जब भी कोई गुजराती लैंग्वेज की टीचर होती है या तो हिंदी लैंग्वेज की टीचर होती है, उसको कुछ अपने नोट्स बनानी होती है या तो पेपर निकालना होता है, वहां पे बहुत तकलीफ होती है। तो ये यहाँ पे गूगल डॉक हमें ये बेस्ट फीचर दे रहा है कि हम पूरे का पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट कर सके, और आप इस फीचर्स से स्टूडेंट को इजीली जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अपना मटेरियल्स है, वो आप शेयर कर सकते हो, असाइनमेंट दे सकते हो। देन द मेक हाइपरलिंक डॉक, मतलब कि आप उसमें हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू योर स्टडी वो देख सकते हैं। देन वी कैन ओके यहाँ पे हम लोग ऐसे भी देखने वाले हैं कि इस गूगल डॉक्स को हम किस तरह से शेयर करेंगे और किस तरह से कोलैबोरेट करेंगे। Then after we can also use the explore button. I think the best thing of the Google Doc, that is the explore button. बहुत सारी चीजों में एक्सप्लोर बटन यूज होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे वो किस तरह से यूज होता है। एंड इतनी सारी फैसिलिटीज तो है गूगल डॉक में, फिर भी हमें कुछ और चाहिए तो हम एड ऑन यूज करके, एड ऑन को ऐड करके भी उसे यूज कर सकते हैं। we can we have a inbuilt template also. गूगल डॉक ने थोड़े बहुत इनबिल्ट टेम्पलेट भी रखे हैं, जिससे आप इजीली उसको यूज करके अपना डॉक जल्दी से बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर, आई थिंक वी डू सम प्रैक्टिकल। हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू ओपन अ गूगल डॉक, आपको गूगल डॉक ओपन करनी है तो किस तरह के कर सकते हैं? तो देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे वेज है जिससे हम गूगल डॉक ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू राइट द omnibox docs.google.com। इस तरह से भी हम नया वाला कोई भी डॉक ओपन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप अपना क्रोम या गूगल ओपन करोगे, ड्राइव ओपन करोगे या तो अपना जीमेल ओपन करोगे, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको 6 डॉट दिखाई देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ गूगल एप्स, या तो उसको वेफल्स भी बोला जाता है। वहां पे आप क्लिक करके भी गूगल डॉक को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मुझे गूगल डॉक का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो भी मेरा गूगल डॉक ओपन हो जाएगा। एंड सपोज इफ यू ओपन अ ड्राइव, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। सपोज मैंने कोई ड्राइव ओपन की है, दिस इज माय ड्राइव, एंड आई वांट ओपन अ डॉक फाइल, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकती हूँ अपने गूगल डॉक को ओपन। तो इस तरह से डिफरेंट वे से आप गूगल डॉक को ओपन कर सकते हैं। Now this is the first layout of the Google Doc. फर्स्ट थिंग ये है कि यहाँ से हम लोग कोई भी फाइल है उसको सेव कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल का ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ द, you can share your doc, you can open a doc, you can make a copy, then edit view में आप ये सारी चीजें कर सकते। I think these are the common for all the of word processor.
तो यहाँ पे एक है दैट इज अ इमेज. आप इमेज कैसे गूगल डॉक में ओपन कर सकते हो? तो देयर आर मेनी वेज. एक वे है कि आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च में जाके वेब में से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो. एक अपने ड्राइव से कर सकते हो, एक फोटो से कर सकते हो. एंड इफ यू सपोज यू हैव अ यूआरएल ऑफ द पिक्चर, आपको पिक्चर की यूआरएल है या तो कोई फोटो की यूआरएल है, you can directly URL से भी कर सकते हैं. You can also use your cameras also. For example, जैसे हम गूगल में जाके इमेज शेयर करते हैं, ये वैसे ही यहाँ पे हमें फैसिलिटी दी गई है कि हम गूगल ओपन करते हो कोई भी इमेजेस ओपन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट वांट टू सम इमेजेस ऑफ द फ्लावर्स, देन यू कैन सी हियर बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे है एंड दीज आर द फ्री फॉर यूज. जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता कि कौन सी इमेजेस है, फ्री है नहीं है. यहाँ पे फ्री इमेजेस ही हमें दिखाई देती है. तो यहाँ पे कॉपीराइट फ्री इमेजेस, या इट्स ऑल आर द कॉपीराइट. वो सारी कॉपीराइट होती है और फ्री इमेजेस होते हैं. इसमें से कोई भी इमेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. तो इस तरह से मैं अपने फाइल में या तो अपने डॉक में इमेजेस स्टोर कर सकता हूँ. नेक्स्ट थिंग है दैट इज अ टेबल. आई थिंक अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो दिस इज अ वेरी same way for inserting a table. Next thing, drawing. This is a new this is the best thing in a doc because हम suppose I just want to add the diagram of diagram मुझे अपने फाइल में ऐड करना है, अपनी डॉक फाइल में, या तो मुझे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक डिजाइनिंग हेडिंग ऐड करना है, तो वो सारी चीजें हम ड्राइंग में यूज कर सकते हैं. दिस इज अ गूगल ड्राइंग. ये गूगल ड्राइंग है और यहाँ पे गूगल डॉक के साथ सिंक्रोनाइज है. सेम वे हम चार्ट को भी यूज कर सकते हैं. मैंने पहले ही बोला था कि गूगल डॉक को यूज करने का एक बहुत ही अच्छा फायदा है कि गूगल के सारे टूल्स यहाँ पे सिंक्रोनाइज होते हैं. इस तरह से जैसे गूगल ड्राइंग सिंक्रोनाइज है, वैसे ही गूगल शीट भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज है. इफ यू हैव अ रेडीमेड चार्ट ऑन अ शीट, अगर आपके पास शीट में चार्ट है तो वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं. द न्यू थिंग कम्स इन डॉक दैट इज अ वाटरमार्क. वाटरमार्क है, अभी नई थिंग आई है. जैसे हम अपने पेजेस पे वाटरमार्क दे सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी हम वाटरमार्क दे सकते हैं. कोई भी पिक्चर या तो कोई ऐसा आपका कंपनी का या तो बिजनेस का या तो स्कूल का लोगो है, वो आप यूज कर सकते हो और एज अ वाटरमार्क उसे इंसर्ट करवा सकते हो. फिलहाल मैं कोई एक पिक्चर ले रही हूँ जो मैं एज अ वाटरमार्क सिलेक्ट कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे पेज में पीछे मेरा पिक्चर का वाटरमार्क आ गया है. तो इस तरह से आपको कोई भी बर्थडे कार्ड या तो पेज कवर बनाना है तो यू कैन यूज अ वाटरमार्क आल्सो. Can you scroll down? Can you scroll down that page? No. On Okay. document Yes, page. Yes. Now you can see this watermark. Yes. Okay. तो दिस इज अ वाटरमार्क और उसको आप यहाँ से स्केल भी कर सकते हैं. आपको किस तरह से चाहिए. सपोज आई जस्ट वांट 500% स्केल, तो मेरा पूरा पेज इसमें कवर हो जाएगा. इस तरह से आप यूज कर सकते हो. और सपोज यू डोंट वांट अ फेडेड, आपको फेडेड नहीं चाहिए तो आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे दूसरी इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हो. तो दिस इज अ गुड थिंग. Can we write on that particular picture? This is a picture. This is a watermark. Yes, watermark. And what happened after we write on that picture? Sorry, ma'am. If उस पिक्चर पे वाटरमार्क है तो वो बैकग्राउंड में रहेगा. तो वो वही जो भी बोल रही लिखाई करते हैं ना, जो भी लिखते हैं वो वहां पे बरकरार रहेगा. Yes, उसके yes, पीछे yes. ढक नहीं जाएगा. That writing. Yes, yes. Okay. इस तरह से. Yes. Okay. Now you can It's like also become our background. ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा. और यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं. हम पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, उसमें हम टेबल भी इंसर्ट करवा सकते हैं, उसमें हम लिख भी सकते हैं. तो ये हमारा बैकग्राउंड की तरह भी यूज होगा
और अगर आपके कंपनी का नोट कोई ऑफिस वर्क Logo. ऑफिस लेटर बना रहे हो या तो कोई न्यूज लेटर बना रहे हो, तो इसके लिए भी आप कंपनी का लोगो लगा के वाटरमार्क यूज कर सकते हो. दिस इज अ न्यू थिंग, अभी आई थिंक डॉक में आई है. ओके, I think next thing is okay, fine. That is a table of content. Best way to insert a table of content is let's say I just remove the watermark. यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट आउटलाइन है. सपोज यू आर मेकिंग अ पॉइंट्स फॉर अ स्पेसिफिक चैप्टर. आप कुछ कोई चैप्टर के लिए पॉइंट्स दिखा रहे हो या तो पॉइंट्स बना रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो स्टूडेंट को इजीली पता चले कि ये पॉइंट्स यहाँ पे है, ये पॉइंट्स हिस्ट्री का कुछ बना रहे हो या तो कोई हिंदी का बना, लिटरेचर का बना रहे हो, इंग्लिश का बना रहे हो, तो यू कैन यूज आउटलाइन ऑप्शन. ये यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन है, वो आप यूज कर सकते हो. For example, I just write the topic 1, then write the topic 2, सपोज मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक डाले हैं और उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया. यहाँ से आप टाइटल या हेडिंग 1 हेडिंग 2 दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हेडिंग 1 and again this is a heading 1 and this is a heading 1. ये इनबिल्ट फॉर्मेट है, आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो. एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप डॉक में काम कर रहे हो और आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पॉइंट्स आते हैं, और वो क्वेश्चन या जो भी आपको वो मटेरियल क्रिएट करना है वो अगर आप डॉक में करते हो ना, तो यहाँ पे जैसे मैडम ने दिखाया ना टॉपिक 1 टॉपिक 2, बहुत 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 अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा और इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा स्टूडेंट को. यस. नाउ ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया है. सपोज आई सिलेक्ट द टॉपिक 2, तो वो डायरेक्टली जहां पे मेरा टॉपिक 2 है वहां पे वो आ जाएगा और वहां पे ही वो उसको दिखाई देगा. सपोज आई सिलेक्ट टॉपिक 3, तो जहां पे टॉपिक 3 है वहीं पे वो डायरेक्टली स्क्रॉल और मूवमेंट कर सकेगा. ओके, तो दिस इज बेनिफिट इज दैट के अगर आपने टॉपिक क्रिएट किए हैं या मैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया है ना, तो सिर्फ उस पे क्लिक करो. आपको पेज स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर ये तो एक पेज है, आपके 10 पेज का कंटेंट रेडी है और यहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया है ना, तो इतना इजी हो जाएगा ना कि सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट में जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करो, उस टॉपिक के ऊपर क्लिक करो और वहीं पे आ जाएगा, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको. तो ये एक बहुत बहुत ही अच्छा फीचर्स है. नाइस इन्फॉर्मेशन पायल मैम. एंड वन मोर थिंग, सपोज ऐसा होता है हमारे हिस्ट्री में जनरली एक टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स या सब हेडिंग्स होते हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल होता है. फॉर एग्जांपल इन अज्यूम करो कि आपको टॉपिक 1 में एक और चीज है लाइक सेक्शन 1, and let's say okay, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन 1 को आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड मैंने उसको हेडिंग 2 अपॉइंट किया है. सेम वे सेक्शन 2 को भी मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 अपॉइंट किया है. तो यू कैन सी ऑन माय लेफ्ट साइड, आप यहाँ पे मेरे बाई बाजू देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे. सपोज मुझे सेक्शन 2 पे जाना है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. सपोज मुझे सेक्शन 1 में जाना है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. तो इस तरह से भी सब टॉपिक को भी हम यूज इजीली कर सकते हैं. So this is a good thing while you are making a notes for students or for the kids. Next thing I just want to tell you that is I just delete this. I use a heading, title, subtitle. ये predefined format है. Suppose you are making your paperwork or your newsletter, तो आपको यहाँ पे specific
टाइप्स के फॉन्ट और फॉर्मेट दिया गया है, आपको उसी टाइप के फॉन्ट्स एंड फॉर्मेट यूज करने हैं, तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने टॉपिक 1 लिखा है और मैंने उसको हेडिंग 1 अप्लाई किया, बट आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो मैं ये वाला फॉर्मेट चेंज भी कर सकती हूँ। यू कैन सी हियर द अपडेट हेडिंग, अपडेट टू मैच हेडिंग 1। यहाँ से आप किसी उसको चेंज भी कर सकते हो और उसको बढ़ा भी सकते हो। तो इस तरह से मैं अपना प्री डिफाइंड फॉर्मेट यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट थिंग दैट इज इन आवर what that is I think voice typing और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। जब भी हम हिंदी टीचर या तो कोई गुजराती टीचर या तो संस्कृत टीचर काम करती है, उसको एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमारी लैंग्वेज में हम लोग इजीली टाइप नहीं कर सकते, या तो आपके पास ऐसी कोई मटेरियल्स आए हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है और उसको आपको हिंदी या गुजराती में ट्रांसलेट करना है, तो यू कैन यूज अ ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हिंदी या गुजराती में ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं आपको एक लेट मी जस्ट यहाँ पे मैं विकिपीडिया से कुछ इंफॉर्मेशन इंग्लिश में ले रही हूँ, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। I just select this information and paste it to my page. Then I just choose the translate document. यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। You just select the हिंदी और गुजराती। Okay, I just select the Hindi language and I just click on a translate. Within a few seconds आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। तो ये चीज हमारे स्टडी के लिए, जो भी हमें स्टूडेंट को देना है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कोई भी चीज को हम इजीली कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, एंड सेम वे वो एक अलग पेज में भी आपको डिस्प्ले कराएगा। दिस इज माय सेकंड पेज दैट इज नेम्ड बाय ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट थिंग, उसी तरह से हम वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरा वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है एंड आई जस्ट सेलेक्ट द लैंग्वेज, आई जस्ट क्लिक ऑन अलाउ। हेलो, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज में इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमें कुछ टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली हम जो भी बोलेंगे वो टाइप करके हमें देगा। तो जैसे हम मोबाइल में टाइप कर सकते हैं उसी तरह से हम शुद्ध इंग्लिश में लखाई छे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। यस, और उसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट सिलेक्ट द हिंदी लैंग्वेज। हेलो, कैसे हैं सब लोग? होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है इस सेशन से। दैट्स इट, सो इजी। तो उसी तरह से हमें पेपर टाइपिंग करनी होती है या तो कुछ नोट्स वगैरह देने होते हैं, तो हम इजीली ये फीचर्स यूज करके हमारा काम फास्टली कर सकते हैं। I want to say something कि I can टाइप इंग्लिश। मुझे ये पता है कि मेरे कीबोर्ड पे एबीसीडी कहाँ है, मगर मुझे ये पता नहीं है कि हिंदी में ह कहाँ पे है और क कहाँ पे है। तो ये है ना बहुत अच्छा एक टूल है, जो मैं बोलूंगी ना वो टाइप कर देगा। तो मुझे यहाँ पे हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बोलती जाऊंगी और वो टाइप होता जाएगा। और मैं समझती हूँ कि 90 to 95% वो सही टाइप करता है। वॉइस टूल है ना, तो अगर आप हिंदी की टीचर है, इवन मराठी की टीचर है, या आप साउथ इंडियन हो, तेलुगु, तमिल या कन्नड़ में आपको कुछ टाइप करना है ना, तो वो बिल्कुल सही करता है। फिर अगर नहीं होता है तो
थोड़ा बहुत नहीं होता है तो वो अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड टूल। एक बार एक्सप्लोर करो उस टूल को, बहुत 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 मजा आएगा। आपको पता डिप्टी चलेगा कि टीचर यस यस ગુજરાતી પણ બહુ જ સરસ ટાઈપ કરે છે. ભૂલ વગરનું Yes. થાય છે દક્ષાબેન, ભૂલ વગરનું, વિધાઉટ એની મિસ્ટેક. ધેટ ટ્રાન્સલેટ ફીચર ટાઈપ ગુજરાતી વિધાઉટ એની ગ્રામર મિસ્ટેક. મને વધારે હેલ્પફુલ છે કારણ કે ગુજરાતી કીબોર્ડ કરતા વોઇસ એક્ઝેક્ટલી. અને આના એમાં માટે પણ વાર ભૂલ પણ વગર- લાગે છે. ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરીએ ત્યારે કીબોર્ડમાં થોડું ઘણું સર્ચ કરવું પડે અને પછી Yes. ટાઈપિંગ કરીએ છે. આમાં એકદમ ફ્રીક્વન્ટ ઓફ સેકન્ડ્સમાં ટાઈપ કરી દે છે. તો આઈ થિંક ટીચર્સ માટે તો બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અને આપણા શબ્દમાં તો ધેટ્સ ગુડ. યસ યસ, આપણા શબ્દોમાં, બુકના નહીં. તો એ વખતે જે બોલતા હોય એ ફિલિંગ હોય ને, એ ફિલિંગ પણ આવી જાય કે ના આ છે. क्विक क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड गुजराती? ओके, यहाँ पे आप जो कोई भी हो, नॉन गुजराती पर्सन, कैन यू अंडरस्टैंड गुजराती? ओके, जब आंसर आए तब तक आई रिक्वेस्ट डिप्टी टीचर टू जस्ट कैरी ऑन द सेशन. Yes, now I'm sharing my screen. I'm sharing my screen. And I think Salini Manna wants to speak something. Yes, ma'am. yes, Shalini ma'am. Wait a minute, ma'am. Just a minute. हेलो, Sorry मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. सॉरी मैम, मैं स्पीकर से कर रही थी. जी मैम, मुझे गुजराती आती तो नहीं है लेकिन सेशन में मुझे सब समझ आ रहा है. थैंक यू सो मच. Okay, आप Okay, so गुजराती समझ सकते हो? मुझे लगता है आज पहली बार मैंने ऐसे सेशन में आमने सामने बैठ के किसी से सुना है. अदरवाइज फिल्मों में या उतना ही मैंने सुना है, लेकिन मुझे सेशन बिल्कुल समझ आ रहा है. आप बीच में कहीं भी बोल रहे हैं तो मुझे समझ आ रही है. ओके, कोई That- दिक्कत that- नहीं है. हम लोग हिंदी में सेशन कंडक्ट कर रहे हैं. थैंक यू. Okay. Now is my screen visible? Yes ma'am. Okay. Now, what I want to explain you is how to share a doc. Shared doc को कैसे यूज करते हो? अगर कोई टास्क कोलैबोरेट हुआ है आपके साथ तो उसमें कमेंट कैसे करते हो? सेंडिंग ईमेल्स टू कोलैबोरेटर ऑफ रिसेंट चेंजेस, आपने कोई चेंजेस किया है तो वो कैसे आप कर सकते हो? एक्सप्लोर बटन है जहां पे गूगल डॉक में, वहां से क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, ढेर सारी बातें आपको जानने को मिलेगी. फिर एडिंग एड-ऑन्स, एड-ऑन्स जो होता है वो क्या होता है और वो क्या काम करता है हमारे टूल के लिए वो, और क्रिएटिंग डॉक्स फ्रॉम टेम्पलेट्स, ये सब हमें आज सीखना समझना है और मैं समझाऊंगी. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि ये मेरा डॉक्यूमेंट खुला है. आपको पायल मैम ने सब कुछ समझा दिया है कि कहाँ से क्या जाना है. अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस डॉक्यूमेंट का टाइटल लगाना होगा. ओके, सो यहाँ पे मैं टाइटल लगा देती हूँ कि डेमो डॉक. ओके, ये मेरा टाइटल हो गया. और यहां से मुझे कुछ जो मेरे पास मटेरियल है ना, वो मटेरियल मुझे मेरे कलीग के साथ शेयर करना है. ओके, सो मैं क्या करूंगी, मैं आपको पहले एक्सप्लोर में दिखाती हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे दक्षा टीचर है या पल्लवी टीचर है, वो एसएस लेती है. ठीक है, और एसएस में आता है कि भाई नेशनल पार्क. ओके, और यहाँ पे एक्सप्लोर बटन में जाके मैं देखो ये लिखती हूँ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. क्लियर, और यहाँ पे मैंने एंटर लगाया. आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जो विकिपीडिया पेजेस है वो खुल जाएंगे. ओके, और यहाँ पे देखो टॉप 10 नेशनल पार्क इन इंडिया है, ये मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हो कि ये पूरी फाइल खुल गई है. और ये कोई चीज है जो मुझे उनके साथ शेयर करनी है. ओके, चलो ये तो बहुत लंबा है, मुझे नहीं शेयर करना है. यहां से मैंने इमेज ली और यहाँ पे ये एक इमेज है जो किसी नेशनल पार्क की है और मैंने ये इमेज इंसर्ट कर दी, मानस नेशनल पार्क. ओके,
ये इमेज इंसर्ट कर दी। ये सारी इमेज जो होती है ना एक्सप्लोर बटन से आपको मिलती है, वो सारी कॉपीराइट फ्री होती है, तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर केस नहीं करेगा कि आपने क्यों मेरी इमेज को यूज किया। ये मेरे पास इमेज है। अब ये मेरा डॉक है, डेमो डॉक है, वो मुझे मेरे एसएस के टीचर्स के साथ शेयर करना है कि मैम मुझे ये पिक्चर मिला है, शायद आपको कोई आगे काम में आएगा। सो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो तरीके से शेयर कर सकती हूँ। या तो मैं फाइल मेनू में जाऊंगी, ओके, और यहां से जो शेयर का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा लोडिंग हो रहा है, ये एक शेयर का ऑप्शन खुल गया। सेम शेयर का ऑप्शन आपको गूगल भी देता है। आप मेरे राइट हैंड साइड के कॉर्नर के ऊपर देख सकते हो, ब्लू बटन है शेयर का, ठीक है, वहां से मैं क्लिक करती हूँ और देखो ये शेयर का ऑप्शन आ गया। अभी मुझे किसको भेजना है, मुझे मेरे दक्षा टीचर को भेजना है क्योंकि वो एसएस लेती है। तो यहाँ पे मैं दक्षा वी @rosary school rajkot.org टाइप करती हूँ, ठीक है, देखो ये आ गया। या फिर मुझे पायल टीचर को बोलना है कि पायल टीचर आप मुझे इसके बारे में जो मानस लिखा है ना, मानस नेशनल पार्क, उसके ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो ये पायल टीचर भी आ गई, ओके। अब क्या करना है, अब मुझे कोलैबोरेट करना है। अभी कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन वो होता है कि मैंने जो बनाया है उसके अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, नाउ आई वॉन्ट माई टीचर्स टू एड समथिंग इन दैट, ओके। मुझे मेरे टीचर चाहिए कि आप मेरे इस डॉक्यूमेंट में आप अपने तरीके से ऐड करो। सो मुझे ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उनको एडिटर का राइट दूंगी। अगर मैं एडिटर का राइट नहीं देती हूँ तो ना तो वो कोई चेंज कर पाएंगे ना कुछ लिख पाएंगे। तो वो एडिटर का राइट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये इस बटन पे है, ये बटन पे मैंने क्लिक किया, डाउन एरो पे मैंने क्लिक किया, जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्या मैं दक्षा टीचर को सिर्फ देखने का राइट देने वाली हूँ, तो मैं व्यूअर पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे चाहिए कि दक्षा टीचर सिर्फ कमेंट करे, तो मैं उनको कमेंटर का राइट दूंगी, वो सिर्फ कमेंट कर सकती है, दैट इज गुड, दैट इज बैड, ओके, उस टाइप से। और अगर मैं एडिटर का राइट देती हूँ ना, तो वो मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी कर सकती है, वो शेयर भी कर सकती है, वो चाहे तो जो उसमें कंटेंट है वो डिलीट कर सकती है, वो चाहे तो कुछ अपने हिसाब से ऐड भी कर सकती है, ठीक है। अभी मैंने इस दो पर्सन्स को मैंने ये किया है, और यहाँ पे देखिए ये नोटिफाई द पीपल, अगर आप यहाँ पे क्लिक रखा है तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके, इस तरीके से आता है। और यहाँ पे मैं मैसेज पुट अप कर दूंगी कि डियर मैम, please add your content in this shared document, okay। यहाँ पे मैंने ये कंटेंट का स्पेलिंग गलत आ गया है, उसको सुधारना पड़ेगा, ये रहा, ओके, और ये हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे नीचे डेमो डॉक से दिखता है, ओके। और इसको मैं सेंड कर देती हूँ ना, तो दक्षा टीचर के स्कूल के ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, और जो पायल टीचर है वो पायल टीचर को भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक और बात मुझे बतानी है कि अगर ये डॉक्यूमेंट मैंने इस क्या बोलते हैं राइट से दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड ओनली पीपल एडेड कैन ओपन दिस लिंक, मतलब कि मैंने जितने लोगों को ऐड किया है ना, वो लोग ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे चाहिए कि अगर दक्षा टीचर है वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहती है और स्टूडेंट भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो मुझे ये राइट बदलना पड़ेगा। तो वो कहां से होगा, तो मैं ये करूंगी चेंज टू एनीवन विथ लिंक, इस राइट से करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड, तो मैं जिनको भेजूंगी ना उनके हिसाब से ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर मैं ये करती हूँ एनीवन विथ लिंक, तो क्या होगा कि जो कोई है वो
ये लिंक को ओपन कर सकता है। इसमें भी अलग से राइट देने होते हैं कि आप व्यूअर के राइट देना चाहते हो, कमेंटर के राइट देना चाहते हो, कि एडिटर के राइट देना चाहते हो। मैंने एडिटर का राइट दे दिया हो और डन कर दिया, तो अभी पायल टीचर और दक्षा टीचर जिसको ये डॉक भेजेगी, दोज पर्सन कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट। तो आई होप कि ये शेयर कैसे करते हैं वो सब समझ में आ गया होगा। आई थिंक दक्षा टीचर, आई वांट टू ऐड सम थिंग कि ये लिंक शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जिनको हमने ये लिंक शेयर की है वो सारे एडिट कर सकते हैं। दक्षा टीचर, डिप्टी टीचर, कैन यू डू वन थिंग कि आप जो आपकी डेमो फाइल है ना, उसमें जो लिंक है उसमें व्यूअर का राइट्स रख दो और सारे ऑडियंस को वो लिंक शेयर करो ना। यस 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 यस, आई कैन डू दिस। कॉपी लिंक एंड ओके। मैम, आई थिंक पहले आपको एडिटर का राइट्स निकाल के व्यूअर का राइट्स करना पड़ेगा। यस यस यस, वेट। यहाँ पे चेंज और एंड व्यूअर राइट। ओके, नाउ कॉपी लिंक और हमें शेयर कीजिए। यस। ओके, इस तरह से भी आप, या फाइन फाइन, इस तरह से भी आप शेयर कर सकते हो। सपोज यू मेड अ थिंग्स एंड यू जस्ट वांट टू शो योर प्रिंसिपल और शो योर बॉस, तो आप इस तरह से भी लिंक शेयर करके आपके अपने बॉस या अपने प्रिंसिपल पर दिखा सकते हो कि आपने ये बनाया है, आप देख लो। ओके, now you can see, can you see my screen? Yes ma'am. Okay, you can see, look, this anonymous jackal और anonymous frog, ये दो पर्सन है जिसने ये ओपन किया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ओपन किया है, तो आप इसको देख सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करते हो और आप व्यूअर के राइट्स देना चाहते हो तो ये हो सकता है। और अगर आपने जो कोई मटेरियल शेयर किया है अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आप व्यूअर के राइट देते हो तो दैट इज बेटर, कि वो कोई लिखाई में या कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज वन थिंग। नाउ एंड आई यस, सॉरी मैम, एंड आई जस्ट वांट टू ऐड यू दैट के सपोज आप इस तरह से स्टूडेंट के साथ लाइव असाइनमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू हैव 5 to 10 स्टूडेंट्स ने आपने सबके रोल नंबर वाइज एक पेज लिख दिया है, एंड आप यही चाहते हो कि अपने लाइव सेशन में ही वो सारे क्वेश्चन के आंसर फिलअप करें, तो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो इस तरह से आप लाइव असाइनमेंट कर सकते हैं, लाइव एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द व्हाट इज शेयरिंग। और आप कैसे अपने कोलैबोरेटर्स के साथ, मतलब कोलिग्स के साथ या टीचर्स के साथ शेयर करते हो, या फिर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। और सच मानिए, अगर बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं कोलैबोरेशन में, इतनी सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे ना कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि ओके बच्चे कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते। सिर्फ उसको, उन लोगों को सिर्फ एक डायरेक्शन दे दो कि ये मुझे चाहिए। और आप दक्षा टीचर को पूछ सकते हो कि उन्होंने ये वर्क 11th 12th के बच्चों के साथ किया है और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिले हैं उनको, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो दैट इज वन मोर थिंग। नाउ आई want to explore that explore tool। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्क्रीन में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक स्टार बटन है जिस पे लिखा है एक्सप्लोर। क्या आप सब देख सकते हो? जोईशा कोच हो? यस मैम। Yes, ma'am. Click on, yes, now click on this button। और I am a science teacher, सो मुझे चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो कि मेरे बुक में नहीं है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम चाहिए जो मेरे बुक में नहीं है। ओके, और मैं इमेजेस में जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी सारी इमेजेस मेरे पास
खुल गई है और मुझे ऐसी इमेज चाहिए जिसमें नॉमेनक्लेचर ना आता हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं वो मुझे पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो आइडेंटिफाई करके दे, तो इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट में डाला और ये आप देख सकते हो कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे खुल गया। और मैं बोलती हूँ ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, अदरवाइज मैं इनको शेयर करती हूँ विद एडिटर राइट्स। ओके, तो ये लोग मुझे पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो मुझे लिख के दे सकते हैं। ये मैं कोलैबोरेशन के साथ कर सकती हूँ। अभी मुझे जो बताना है कि सपोज मेरे बच्चे हैं, वो बच्चों ने ये सब मुझे करके वापस दे दिया है, ठीक है, ये सब करके मुझे वापस दे दिया है और उनका जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास आया है। तो मैं क्या करूंगी, तो भाई मैं अपना डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल खोलूंगी और देखूंगी कोई बच्चे ने मुझे वापस करके भेजा है। ओके, तो यहाँ पे इस अकाउंट में तो नहीं होगा, मगर ओके चलो, ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं ओपन करके देती हूँ। ओके, ये एक इलोक्यूशन कंपटीशन का टॉपिक था, स्वामी विवेकानंद जीवन नो एक प्रेरणादायी प्रसंग रामकृष्ण मिशन के वहां से ये हुआ था। ओके, एक बच्चे ने मुझे ये करके दे दिया है और मुझे उस बच्चे के वर्क को कमेंट करना है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सही लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे को मैं एप्रिशिएट करूं। ओके, तो पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट पे मुझे कमेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेरे राइट हैंड साइड में एक ब्लू प्लस साइन है और एक सजेस्ट एडिट है। ओके, और मुझे डायरेक्टली कमेंट करना है उस बच्चे के डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्या करूंगी? ओके, तो ये जो प्लस आइकन है, ये प्लस आइकन यहाँ पे राइट हैंड साइड के डॉक्यूमेंट के साइड में भी मिलेगा और ये आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे जो बोल्ड इटैलिक और जो हमारा मेनू बार है ना, उसमें लिंक के बाजू में भी ये आपको मिलता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करना है इस बच्चे के वर्क पे कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, सो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी यहाँ पे @ करके, अभी @ करूंगी और बच्चों के ईमेल आईडी है, ठीक है, मेरे पास। और यहाँ पे सपोज आई जस्ट बिलीव दैट दक्षा टीचर इज माय स्टूडेंट। ओके, सो आई एंटर दक्षा टीचर्स ईमेल आईडी। आप समझ लो कि ये बच्चा है, उनका नाम दक्षा है, ठीक है, तो ये मैंने उनका ईमेल आईडी डाल दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरी गुड वर्क, कीप इट अप, ठीक है। और फिर मैंने ये असाइन टू दक्षा टीचर कर दिया और ये मैंने असाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो someone needs to access the file। ओके, तो मैं क्या करूंगी कि भाई ओके, टर्न लिंक शेयरिंग ऑन, और मैं कमेंट कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है तो मुझे वो बॉक्स पे वो भी करना पड़ेगा, करेक्ट भी करना पड़ेगा, क्लिक भी करना पड़ेगा। तो ये असाइन टू दक्षा टीचर हो गया। मुझे ये एडिट करना है, ठीक है, तो मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन डालनी है कि गिव मोर डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया, तो ये दक्षा टीचर को दूसरी बार चला जाएगा। मुझे किसी और को करना है, मैं @ पायल टीचर करूंगी तो वो पायल टीचर भी आ जाएगा, प्लीज चेक। तो इस हिसाब से आपके पास जितने भी बच्चे हैं, रीअसाइन टू पायल टीचर, ओके, रीअसाइन, ये रीअसाइन हो गया। तो आप डायरेक्टली कमेंट करते हो और क्या होता है पता है कि ये बच्चे को एज अ मेल जाएगा कि मैडम ने या आपकी टीचर ने ये चेक कर लिया है, आपको जो भी फीडबैक देना है या फिर आपको जो भी एडिट वगैरह करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो भी इसमें आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। आप ऑन द स्पॉट आप उसी डॉग पे बच्चे को एप्रिसिएशन दे सकते हो, आप
उसको सजेशन भी दे सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद मुझे जो आपको दिखाना है वो है एड ऑन्स। व्हाट इज एड ऑन्स? ओके, मुझे आपको कुछ पूछना है कि आपने नया घर खरीदा है, ठीक है, बिल्कुल नया घर है, फ्लैट है, ओके, फर्नीचर है, विद फर्नीचर आपका घर है। क्या उसके बाद आप कोई चेंजेस लाना पसंद करते हो? या फिर मैं ऐसा बोलूं कि आप ઓકે, આઈ થિંક દક્ષા ટીચર સોરી દીપ્તિ ટીચર લેફ્ટ થઈ ગયા લાગે છે. સો વી જસ્ટ મૂવ ફોરવર્ડ. આપણે વાત કરીએ છીએ એડોન્સની. યસ દીપ્તિ ટીચર. દીપ્તિ ટીચર યુ આર અનમ્યુટ. સોરી, મે બી નેટ ફ્લક્ચ્યુએટ થઈ ગયું તો આઈ ડોન્ટ નો. ઓકે, એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે મેં તમને બધાને, that you bought a new house with furniture, okay, वो हाउस को आप होम बनाना चाहते हो, आप घर बनाना चाहते हो, तो क्या आप कोई उसमें चेंजेस करोगे? या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आप डेकोरेट करने के लिए क्या करोगे आप घर को? યસ મેમ. અન્યુ કોઈ આન્સર આપી શકો છો? હા મેડમ. Yeah, કેવી we રીતે can add દક્ષાબેન? some hangouts, we can add some wallpapers. દક્ષાબેન તમે શું કરશો? સરસ મજાના પિક્ચર બનાવીશ એમાં વોલ પર. હા, ફર્નિચર છે તો એ ફર્નિચરમાં બી થોડો ઘણો સુધારો કરાવીશ. એક્ઝેક્ટલી. બારી હશે તો એ બારીને પડદા લગાવશું. ક્લિયર? એક પ્લેન વોલ મળે છે તો એની ઉપર કંઈક હેંગઆઉટ હશે, XYZ કંઈ હશે. ઓકે, તો વસ્તુ એ છે કે એડ-ઓન્સ છે ને એ કોઈ પણ ટૂલ માટે we will have personalization in flat. Exactly. तो एड-ऑन्स एवी वस्तु छे कि ए टूल ने एड-ऑन्स वो है जो इस टूल के जो फीचर्स है ना उसमें एडिशन करता है, मतलब कि वो टूल को बेहतर बनाने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड वी लुक एड-ऑन्स. ओके, सो शेयर. ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ. Yes ma'am. ओके, यहाँ पे मैंने टाइटल बना दिया एड ऑन. ओके, और मुझे क्या करना है, तो यू कैन सी हियर के विद दिस मेनू फाइल एडिट इंसर्ट, इसी लाइन में आगे एक एड ऑन्स लिखा हुआ बटन है. नाउ आई एम क्लिक ऑन दिस. ओके, और मुझे एड ऑन्स चाहिए वो भी डॉक के. सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे गेट एड ऑन्स पे क्लिक करूंगी. ओके, नाउ यू कैन सी वर्क विद डॉक. यहाँ पे आपको जितने भी एड-ऑन्स दिखते हैं वो सारे के सारे गूगल डॉक के साथ काम करते हैं, गूगल डॉक के साथ. ओके, ठीक है, तो वो सब एड-ऑन्स है, वो एड-ऑन्स यहाँ पे है. और मुझे एड-ऑन्स चाहिए, जैसे मुझे हैप्टिया एड-ऑन्स है, वो मैथ्स के लिए है, तो मुझे ये चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल. ओके, एंड आई क्लिक ऑन कंटिन्यू. मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया. ओके, वो पूछेगा चूज एन अकाउंट. मैं अपना अकाउंट चूज करती हूँ. ओके, और मैं उनकी सारी टर्म्स और कंडीशन को मानते हुए अलो के बटन पे क्लिक करती हूँ. एक आपके डॉक में जितने भी फीचर्स है ना, उन सारे फीचर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको एड ऑन्स देंगे. तो
हम अपने जो कोई भी डॉक है उसको किस तरीके से सजा सकते हैं, उसमें एड ऑन्स हमें हेल्प करता है। ओके, ओके, नाउ आई क्लिक ऑन दिस डन, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनइंस्टॉल, जो इंस्टॉल का बटन था उसकी बजाय यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया, मतलब कि आपके डॉक में एड ऑन ऐड हो गया है। ठीक है, कहां से मुझे पता चलेगा? फिर से एड ऑन पे मैं क्लिक करती हूँ और ये देखिए हेप्टिया क्रिएट एड ऑन। ओके, आप इंसर्ट एडिट मैच कर सकते हैं, सेंटर अनसेंटर मैच कर सकते हैं, मिनी एडिटर, ये सब इसके फीचर्स है। वैसे ही मैंने एक एड ऑन पहले से ऐड करके रखा है, एड ऑन फॉर स्लाइड्स एंड डॉक दोनों के साथ काम करता है, और मैंने ये स्टार्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये देखिए इस एड ऑन का नाम है फ्लैटिकॉन। नाउ फ्लैटिकॉन क्या है? फ्लैटिकॉन है वो स्मॉल स्मॉल आइकन्स है, फेसबुक के ढेर सारे दुनिया के आइकन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो और आपको आपका लिंक्डइन का आईडी ऐड करना है, फेसबुक का ऐड करना है, ट्विटर का ऐड करना है, तो वो सारे सारे जो मिनी लोगोज है ना, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, मुझे ये नहीं करना, मुझे बच्चों को सिखाना है मैंगो पे ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैंगो और मैंने डाला एंटर। ये देखिए कितने सारे मैंगोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मुझे है ना ये क्यूट वाला मैंगो पसंद है जिसकी आईज है, तो डाउनलोड दिस आइकॉन। ओके, ये प्रीमियम वर्जन है, तो आप प्रीमियम वर्जन पे नहीं जाते, अपने हिसाब से कोई आइकन ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। वैसे ये फ्री है, मगर आप कोई भी आइकन इस तरह से ऐड कर सकते हैं एड ऑन के हिसाब से। ये अकेला दुकेला एड ऑन्स नहीं है, ढेर सारे एड ऑन्स होते हैं जो कि आपके टूल को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको हेल्प करता है। तो ये एक चीज मुझे ये दिखानी थी, और दूसरी चीज मुझे दिखानी थी कि टेम्पलेट को आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्पलेट कहाँ पे मिलेंगे? तो अगर आप डॉक पे जाओ, मुझे पायल टीचर ने दिखाया कि कहां कहां से आप डॉक में एंटर कर सकते हो। तो ये डॉक का मेनू जो खुला है, और ये सारे के सारे टेम्पलेट्स है, ये लेटर का टेम्पलेट्स है, ये रिज्यूम आप कैसे बना सकते हो उसका टेम्पलेट है। तो ये एक बहुत 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 अच्छा फीचर है ना, कि आपको सब बना बनाया मिलता है। यहाँ पे योर नेम करो और यहाँ पे मैंने डाल दिया दीप्ति व्यास। ठीक है, ये देखो ये टेम्पलेट है, वो आपको रिज्यूम बनाने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट भी साइड में आ गया। ठीक है, यहाँ पे कंपनी और लोकेशन है, तो ये मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ, XYZ, ये सब कुछ आपको टेम्पलेट्स में से मिलेगा। तो ये एक अकेला टेम्पलेट नहीं है, गूगल डॉक्यूमेंट में ऐसे ढेर सारे टेम्पलेट है। ये देखिए कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड टेम्पलेट है, तो आप अपना कोई मटेरियल बनाना चाहते हो ना, तो बना बनाया टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हो। ये देखिए प्रोजेक्ट नेम है, और मुझे साइंस पे प्रोजेक्ट बनाना है, और XYZ किसी पे भी प्रोजेक्ट बना, ये बना बना, ये ओवरव्यू है, ये गोल्स है, ये स्पेसिफिकेशंस है, ये माइलस्टोन्स है। पता नहीं ये स्पेनिश में लिखा है, मगर आप इंग्लिश, गुजराती, हिंदी वॉइस टाइपिंग से सब कुछ कर सकते हो। तो आज मुझे जो बताना था ना, वो सब ये था। और आप, मैं अपना शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ, और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी बताना है या पूछना है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, इन एनी लैंग्वेज, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। दीप्ति मैम, आपने टेम्पलेट कहाँ से लिया था? टेम्पलेट गूगल डॉक में इनबिल्ट है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। वेट, देखो हमारी स्क्रीन शेयर थी पायल। यस मैम। ओके, आप ये वोफल पे जाओगे 9 डॉट पे, फिर आप क्लिक करो गूगल डॉक पे। ठीक है, आपका गूगल डॉक ओपन हो जाएगा।
अगर ये आप प्लस की साइन पे क्लिक करते हो ना शालिनी मैम, तो आपको ब्लैंक डॉक मिलेगा। उसके बाजू में आप देखो ये सारे के सारे टेम्पलेट्स है, ठीक है। और ऊपर ये देखो टेम्पलेट गैलरी, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आपको ढेरों टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये देखो रिज्यूम्स के हैं, ये लेटर्स के हैं, ये पर्सनल है, ये वर्क प्रोफाइल के लिए है, ठीक है। ये मीटिंग नोट्स है, ये न्यूज़लेटर है। अगर आप जहाँ पे जॉब करते हो उसके लिए आपको न्यूज़लेटर बनाना है ना, तो आपका उसका भी बना बनाया टेम्पलेट आपको मिलता है। तो क्या करना है सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट यूज और उसको एडिट करना है। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हो और बहुत अच्छा फीचर है। Yes, Shalini ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, जी. वेलकम मैम, एनी टाइम। Okay, any questions or I have some work? I Game. think yes. अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मेरे पास एक क्वेश्चन आंसर है, दैट इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी and I just would like to share. It's hardly takes 2 minutes. So my first question is, the color of Google Doc logo is a Google Doc का जो logo है, जल्दी बोलो, A B C और D। type your answer in a chat box और अनम्यूट थઈને बोली जाओ। करेक्ट, शाबाश। Yes, B is the right answer. Then Google Doc is a blank. Google Doc क्या है? Word processor। Yes, Very word good, processor is the शाबाश। right answer. Word processor। Then identify this symbol. ये कौन सा symbols है? Font increase decrease Font वाला color। No, it's a font color. Very good, Yes, अक्षाबेन, शाबाश। font अबे चिल्लो color. बाकी रहे, लास्ट ही And बचा can है। you insert Yes, we can। that in a doc? आप doc में insert कर सकते हो? यस आप वसंती doc मैम, में that, yes, very good. वेरी गुड। ओके, होप यू एंजॉय दिस सेशंस। और इसके बाद भी जब भी आपको इस तरह के या डॉक रिलेटेड क्वेरी हो तो फील फ्री टू से अस। हम आप वी आर इन जीजी अहमदाबाद, हम जीजी अहमदाबाद में हैं और आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में या तो हमारा फेसबुक अकाउंट या यूट्यूब में कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यस सर। Brilliant session, Payal ma'am and Dipti ma'am, and I've already shared the feedback form link. Google Doc એક એવું ફીચર છે, એક એવું ટૂલ છે કે તમે કદાચ 5 દિવસ રોજ કલાક બેસીને તમે કરાવો ને તો પણ તમને ઓછું જ લાગશે. તો આજે મને પણ થોડું જાણવા મળ્યું અને હજી પણ એમ ઈચ્છા થાય કે ભાઈ એડોન્સ છે, એડોન્સ વિશે વધારે જાણવા મળે, વધારે ઇન્ફોર્મેશન મળે કે ભાઈ ટીચર્સ માટે કયા એડોન્સ કામના છે. તો આ બધું જે છે એ તમે જેમ એક્સપ્લોર કરતા જશો એમ તમને નવું શીખવા મળશે. પણ ઘણું બધું આજે શેર કર્યું છે બંને મેડમે અને હજી આપણે ઘણું એક્સપ્લોર કરવાનું પણ બાકી છે. યસ દીપ્તિ મેમ. સર, ગૂગલે ડોકમાં બીજા 5 ફીચર્સ એડ કર્યા છે હજી, કે જે ગૂગલ ડોકમાં @ કરીને સાઇન આવે છે. તમે ડાયરેક્ટલી એ ફાઇલ તમારા કન્ટેન્ટમાં એડ કરી શકો છો, તમે ચેકલિસ્ટ બનાવી શકો છો, તમે ડાયરેક્ટલી મીટિંગમાં કોઈને પણ એડ કરી શકો છો. તો એવા નવા 5 ફીચર્સ ગૂગલ ડોકમાં એડ આઈ થયા થિંક છે। એના માટે આપણે એક શોર્ટ વિડિયો બનાવીએ અને પછી આ ગ્રુપ સાથે શેર કરીએ કે ભાઈ કયા ફીચર્સ ગૂગલ ડોકમાં એડ થયા છે રિસન્ટલી. So in a way it's Rupali has got a question. Yes, Rupali ma'am. Yes, just wanted to say excellent session and I really enjoyed the session, Dipti ma'am and Payal ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. I'm glad that you are here today in this session. Yes, ma'am. yes, sir. Great. So yes, we are concluding this session. If there is any questions you can ask, or else we are just concluding the session right now. સર એક ડાઉટ છે સર. Yes. લાઈક આપણે મોબાઈલ ફોન થી સમજો કે જે રીતે દીપ્તિ મેમ કે કોઈક મને શેર કરે છે ગૂગલ ડોક, તો લાઈક જ્યારે પણ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીએ કે એટલે હું ફાઇલ ઓપન કરું ને તો ફર્સ્ટ ટાઈમે પૂછે કે ભાઈ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્સ્ટોલ ગૂગલ ડોક. જનરલી લેપટોપમાં બધામાં તો કેવું કે ડિફોલ્ટ ડ્રાઈવમાં આવી જાય છે. તો મોબાઈલમાં આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે. અચ્છા, ઓકે. ગૂગલ ડોક, સ્લાઇડ બધું તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે. મોબાઈલમાં એ જરૂરી છે. ઓકે. એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર ચાલે છે અને જ્યારે તમે લેપટોપમાં કે પીસીમાં કરો છો ત્યારે તમે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ હો છો અને તમે તમારા ગૂગલ આઈડી થી ઓલરેડી લોગ્ડ ઇન હો છો. તો એ જ્યારે તમે લોગિન રહો છો અને તમે જ્યારે ઓપન કરો છો ત્યારે ઓટોમેટિકલી ગૂગલ ડોક્સ જે છે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન એ ઓન થઈ જાય છે, વર્ક કરી રહી છે.
અને ઓપન થઈ જાય છે. પણ ફોનની અંદર શું છે, ગૂગલ ડોક્સની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડેડ હશે તો જ ગૂગલ ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ ઓપન થશે. એટલે Okay. ફોનની અંદર ગૂગલ ડોક્સ છે, ગૂગલ શીટ્સ છે, ગૂગલ સ્લાઇડ્સ છે, એ બધા એપ્લિકેશન્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા પડશે. બાય ડિફોલ્ટ જીમેલ છે, કેલેન્ડર છે, ગૂગલ ગૂગલ ડ્રાઈવ છે, આટલું ઇન્સ્ટોલ થયેલું આવશે. આ સિવાયના જે કોઈ પણ તમારે એપ્લિકેશન્સ છે એ તમારે અલગથી ઇન્સ્ટોલ કરવા પડશે. આઈ રિમેમ્બર સર, ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે કીધું હતું કે આ 5 વસ્તુ તમારા મોબાઈલમાં જોઈએ, કારણ કે એ વખતે બધા મોબાઈલ યુઝ કરતા હતા કે ભાઈ શીટ, સ્લાઇડ, ડોક, ફોર્મ્સ, પછી ફોર્મ તો ખેર એ તો એ રીતે છે, એવી રીતે 5. એટલે પહેલા તો એ જ વસ્તુ કરી હતી કે ભાઈ આ એક્ઝેક્ટલી છે શું. રાઈટ. તમારે મોબાઈલ થી રિકેશ સર તમે ઓપરેટ કરો છો ને, તો તમારે એ વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ કરવી પડશે. ઓકે, જસ્ટ હજુ એક મારા રેફરન્સ માટે પૂછું છું કે જે રીતે લાઈક આપણે વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ, આપણે MS ઓફિસ ડાઉનલોડ કરી દઈએ કે WPS ઓફિસ ડાઉનલોડ કરી દઈએ તો બધું એમાં ઓપન થઈ જાય, ચાહે વર્ડ હોય, એક્સેલ હોય. તો ગૂગલ માટે એવું કઈ એક કે છે કે જે ઓલ ઇન વન ડાઉનલોડ હોય? ના, ઓકે. ગૂગલની એપ્લિકેશન છે, ગૂગલે જ એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન જે છે તો એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમથી ઇન્વેન્ટ કરેલી છે અને Okay. ગૂગલ દ્વારા જ આ વર્ક થાય છે. ગૂગલના આ દરેક એપ્લિકેશન તમારે અલગથી, જો કોઈ એવી એપ્લિકેશન તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો, સપોઝ એક કોઈ કોમ્પેટેબલ એપ્લિકેશન તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો તો તમે કદાચ એ ડોક્યુમેન્ટ જે ડાઉનલોડ કર્યું છે ઓપન કરીને જોઈ શકશો, પણ એને એડિટ નહીં કરી શકો. ઓકે. એમાં તમે એડ નહીં કરી શકો. પણ જે તે રિલેવન્ટ એપ્લિકેશન ગૂગલ ડોક્સ છે, ગૂગલ શીટ છે, એ તમે ઇન્સ્ટોલ કરેલી હશે તો એ એમાં ઓપન થશે તો તમે એમાં એડિટિંગ કરી શકશો. ઓકે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ મેમ. Yeah. All right, then we are just concluding today's session. Thank you everyone for joining in, and I shall be sharing the recording as available with us. Okay, then see you next. Bye. બાય. થેન્ક યુ પાયલ મેમ, દીપ્તિ મેમ, થેન્ક યુ સર. ખૂબ જ સરસ શ્રીદેવી મેમ. એક્સપ્લેન કરો છો તમે બંને, એકદમ ઈઝી Thank લેંગ્વેજમાં you. અમને ઈઝીલી સમજાઈ જાય એ રીતે. થેન્ક Thank યુ you. સો મચ, ઘણું બધું નવું શીખવા ને જાણવા મળે છે. થેન્ક યુ. એક વાત કહું, મને છે ને તમારું નામ બહુ ગમે છે. પૂછો કેમ? કારણ કે શ્રીદેવી તમારી તમારી Yes, favorite I am die hard fan of શ્રીદેવી. તો મને તમારું નામ બહુ ગમે છે. ખબર છે આપણે